اگر آپ لوگوں کو ایسی سٹوری سنتے وقت ڈر لگتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سٹوری نہ سنیں، کیونکہ آپ کو ڈر لگنے لگے گا، کیونکہ سٹوریز بھی ایسی ہیں اور کہا جاتا ہے جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے قریب آنے لگتی ہیں اور اپنی باتیں غور سے سننے لگتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سٹوری نہ سنیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کا انٹرسٹ ہے سٹوری سننے کا تو لائٹ کو آن رکھیں اور اپنے فرینڈز یا فیملی کے ساتھ ہی سنیں، اور آیت الکرسی کا احسار کرنا نہ بھولے گا۔ چلتے اپنی سٹوریز کی طرف۔ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا یہ ٹرک ڈرائیورز کی سٹوریز ہیں، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں، پر میں نے انہیں ریڈٹ سے لیا، جہاں پر ٹرک ڈرائیورز خود اپنی سٹوریز آ کر شیئر کرتے ہیں۔ اسے میں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے الفاظ میں یہاں نریٹ کیا۔ اگر آپ کو چھوٹی سٹوریز میں انٹرسٹ ہے تو یہ سٹوریز آپ آگے سن سکتے ہیں، لیکن چھوٹی ضرور ہے، سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ میں واشنگٹن کی طرف اسٹریٹ روڈ پر گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ راستہ میں کئی بار کر چکا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ ہر تقریباً 40 میل کے فاصلے پر بڑی سی مٹی کے ٹیلے تھے، جہاں آپ آرام سے سائڈ پر گاڑی لگا کر رک سکتے تھے۔ اس رات بھی میں نے یہی کیا، گاڑی محفوظ جگہ کھڑی کی، کھڑکیوں کے پردے بند کیے اور فون پر کچھ دیکھتے ہوئے لیٹ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک مجھے ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے کی ہینڈل ہلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس وقت اب میں نے سڑک پر کسی گاڑی کی آواز نہیں سنی تھی۔ دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور پردے کے کنارے سے باہر جھانکا۔ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک مسافر سائیڈ والے دروازے کے ہینڈل ہلنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر سے پردہ تھوڑا سا ہٹایا، مگر اب بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈر کی کیفیت میں فوراً انجن سٹارٹ کیا اور ہیڈ لائٹس آن کر دی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو کوئی گاڑی قریب کھڑی تھی اور نہ ہی کوئی شخص دونوں دروازوں کے پاس تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور دل کو سمجھایا کہ شاید ہوا تھی یا کوئی چیز گاڑی سے ٹکرا گئی ہو۔ باہر کھلا میدان اور ہوا تیز تھی۔ میں نے پھر سونے کی کوشش کی اور سلیپر کے پردے بھی بند کر دیے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ایسی آواز آنے لگی، کھڑکیوں پر انگلیوں کے ہلکے ہلکے تھپکے اور ٹرک کے ہلنے کی آواز۔ میں نے سلیپر کے اندر لگا چھوٹا الارم بجایا تاکہ شاید ڈرا کر بھگا دوں، مگر اس سے صرف آوازیں بڑھ گئیں۔ ہوا کے پریشر کی ایک خاص آواز، انگلیوں کی ٹک ٹک اور دروازوں کی کلکنگ۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، بس میں اور میری سانسوں کی آواز، دل کی دھڑکن۔ کچھ لمحے بعد دور سے ایک ٹرک گزرتا ہوا آیا اور چلا گیا۔ میں نے پوری رات جا کر گزار دی، کسی چیز کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی۔ صبح جب باہر نکلا تو نہ کوئی قدموں کے نشان تھے، نہ گاڑی کو نقصان، لیکن ہر کھڑکی پر چھوٹے چھوٹے انسانی ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کسی بچے نے ہاتھ گیلا کر کے بار بار کھڑکی پر مارے ہوں۔ اس منظر نے میرا دل دہلا دیا۔ ایک اور واقعہ، یہ بات تقریباً 2006 کے آس پاس کی۔ میں اس وقت بیڈ فوڈ ٹرک چلا رہا تھا، ٹینسی کے علاقے میں۔ ایک کنسٹرکشن کا سامان لادنا تھا، ڈرائی وال، چھت کے سامان وغیرہ پیک باکس میں تھا۔ یاد رہے مجھے اس پر اسٹرپ پروٹیکٹر بھی لگانے پڑتے تھے۔ یہ سب میفنز اور نیشول کے بیچ میں کہیں کا راستہ تھا، زیادہ قریب الاباما اور ٹینیسی کے اسٹیٹ لائن کے۔ سامان لوڈ کرنے کے بعد شپر سے نکلا تو ترپال لگانا لازمی تھا۔ سب کچھ اچھی طرح باندھا، ترپال ڈالا اور نکل پڑا۔ تقریباً 5 میل آگے جنگلوں والے علاقے میں 2 لائن والی سڑک پر دیکھتا ہوں کہ ترپال ہوا میں پھڑ پڑا رہی ہے۔ ایک چوڑی سائڈ ملی تو گاڑی روک دی کہ ٹھیک کر لوں۔ نیچے اتر کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے میں نے ہی کام خراب کیا۔ سوچا یہیں سائڈ پر دوبارہ سارا ترپال ٹھیک سے کر لوں۔ سٹرپس نکالی، ترپال ہٹایا، رول کر کے سائڈ پہ رکھا، پھر لوڈ کے اوپر چڑھ کر دوبارہ بچھانے لگا۔ اسی دوران دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ اسی سائڈ سے میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں زیادہ نہیں سوچتا، بس نظر رکھتا ہوں
क्योंकि मैं बीच जंगल में हूँ। जैसे ही मैं तरपाल दोबारा बिछा कर नीचे उतरता हूँ और बंजी स्ट्रिप्स दोबारा लगाने लगता हूँ तो वो बंदा मेरी काफी करीब आ जाता है। मैंने अपना रेंज बार उठा के ट्रेलर पर रख दिया। ये एक 8 पाउंड वजनी 4 फीट लंबी स्टील बार होती है जिससे स्ट्रिप्स और चेन टाइट की जाती है। बस हिफाजतन अपने पास रख ली। अब वो बंदा मेरे सामने खड़ा है। सबसे पहले उसके बाल नजर आते हैं, अजीब से, जैसे किसी ने खुद काटे हो और दरमियान में झूल गया हो, जैसे कहा हो चलो पार्टी के लिए इतना ही काफी है। फिर इसकी आंखें साफ थी, ना नशा ना शराब लग रही थी, मगर कुछ ऐसा था जो सीधा नहीं लग रहा था। कपड़े मैले, सफेद टेनिस शूज गंदे और एक जूते की लेस भी नहीं। जुबान बाहर निकली हुई। वो मेरे सामने रुकता है। मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो बस इतना कहता है, तुम्हारे आगे लंबा सफर है। मैं कहता हूँ हाँ भाई वाकई, हम बीच जंगल में। साफ कह देता हूँ कि कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी यहाँ। वो सर हिला के आगे बढ़ जाता है। मेरे ड्राइविंग डोर के पास पहुंचकर दोबारा मुड़ता है और फिर वही बात दोहराता है, आगे लंबा रास्ता है। मैं उसे दोबारा माजरत करता हूँ, इंश्योरेंस वगैरह की वजह से मैं लिफ्ट नहीं दे सकता। वो फिर सर हिला कर चला जाता है। मैं इंतजार करता हूँ कि वो थोड़ा दूर जाए, फिर तरपाल की फिक्सिंग मुकम्मल करने लगता हूँ, लेकिन नजर उस पर ही है। जैसे ही मैं आखिरी स्ट्रिप लगा रहा होता हूँ तो देखता हूँ वो दोबारा मेरी तरफ आ रहा है। अब वो तकरीबन 100 गज के फासले पर है और लगता है जैसे मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। कान पर है और मुंह हिल रहा है, दूसरा हाथ हिला रहा है जैसे किसी से बहस कर रहा हो। मैं जल्दी से रेंज बार पकड़कर कैबिन में चढ़ता हूँ, दोबारा लॉक करता हूँ और रेंज बार पैसेंजर सीट पर रखता हूँ। देखता हूँ वो बंदा अब 10 गज के फासले पर है और मैं समझता हूँ कि ये मोबाइल नहीं, ये तो अपने ही हाथ से बात कर रहा है। और वो बात भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, जैसे किसी पर गुस्से में हो। अब मैं वाकई नर्वस हो गया। फौरन ट्रक स्टार्ट किया, गियर लगाया और निकल पड़ा। पीछे देखने का भी होश नहीं था। जब मैं उसके बराबर से गुजरा तो वो बस मुझे घूर रहा था, हाथ अब भी कान पर, वही डेड फेस, जैसे मेरी रूह तक देख रहा हो। 5वें छठे गियर तक पहुंचकर मैंने मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था, वो बंदा बस गायब था। बढ़ते एक और वाक्य की तरफ। ये वाक्य मेरे वालिद के साथ पेश आया था। वो एडिनबरा से लंदन तक ट्रक चलाते थे और ये वाक्य अक्सर याद करके सुनाते हैं। एक रात वो मोटरवे पर जा रहे थे। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। वो सीधे हाथ देखते हैं तो एक कार उनके बराबर आती है। उस कार में एक औरत बैठी थी, बाल सख्ती से बंधे हुए थे, बिल्कुल मिस ट्रेंचेबल वाले स्टाइल में, और उसके चेहरे पर खौफ की एक अजीब सी झलक थी, जैसे वो किसी चीज से सहम गई हो। मेरे वालिद के बकौल उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे वो किसी से मदद मांगना चाह रही हो, मगर आवाज ना निकल रही हो। अभी वो समझ ही रहे थे कि ये क्या माजरा है कि वो कार अगले एग्जिट से मुड़ गई। अब उन्हें सोचा शायद उनका वहम या औरत की कोई अपनी बात होगी, मगर फिर भी दिल में हल्का सा इस्तराब रह गया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक और गाड़ी उनके बराबर आती है। ड्राइवर अलग है मगर पैसेंजर सीट पर वही औरत, वही हेयर स्टाइल, वही चेहरे का खौफ, वही नजरें सीधी मेरे वाली की तरफ। अब तो अब्बू को वाकई अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि अगले सर्विस स्टेशन पर रुककर पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, चाहे गलत फहमी ही क्यों ना हो, बेहतर है बता दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की तफसील लेने लगे, वो कार तेजी से आगे बढ़ गई। नंबर प्लेट नजर नहीं आई, बस रोशनी में उसका साया सा दिखा। अब्बू ने फिर सोचा कि अब क्या पुलिस को क्या बताएं, न गाड़ी की पहचान न सिमत मालूम, लिहाजा वो आगे बढ़ते रहे। 4 घंटे बाद जब वो तकरीबन लंदन के करीब पहुंच गए थे तो एक और गाड़ी उनके बराबर आती है। ड्राइवर फिर अलग, मगर उस बार भी वही औरत, उसी तरह बाल बंधे हुए, वही खौफनाक तासुरात, मगर इस बार वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो चीख रही थी, जैसे पूरी ताकत से चीख रही हो।
मुंह खुला हुआ और आंखें फटी हुई। अब्बू के मुताबिक इस बार इसके चेहरे पर सिर्फ खौफ नहीं था बल्कि बेबसी भी थी। इन्होंने फौरन ट्रक साइड पर लगा दिया, दरवाजे लॉक किए और फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने बताया पिछले चंद मिनटों में 3 मुख्तलिफ कॉल्स उसी औरत और उसी गाड़ी के बारे में आ चुके हैं। अब्बू ने सारी तफसील दी मगर उसके बाद कभी कोई खबर नहीं मिली, ना पुलिस की तरफ से ना खबरों में। वो औरत फिर कभी नजर नहीं आई। मेरे वालिद आज भी जब ये वाकया सुनाते हैं तो कहते हैं पता नहीं वो औरत वाकई किसी मुसीबत में थी या फिर कोई ऐसी चीज थी जो हमें समझ नहीं आती। बढ़ते हैं एक और वाकये की तरफ। ये वाकया उस वक्त का जब मैं हाई स्कूल में था। गर्मियों के दिन थे और उस दिन मेरे वालिद की सालगिरह थी। हमने प्लान बनाया कि 2 घंटे दूर एक कैसीनो जाएंगे जहां बॉक्सिंग मैच था। मेरे अंकल भी साथ थे। मैच खत्म हुआ तो हमने फैसला किया कि उसी रात वापस घर चलते हैं। वापसी पर हमें एक कैनियन यानी एक पहाड़ी सिलसिले से गुजरना था जहां फोन के सिग्नल नहीं आता। हमने माँ को कॉल करके बताया कि हम निकल रहे हैं और तकरीबन आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। हम सब थके हुए थे, नींद भी आ रही थी, तो सफर को हल्का रखने के लिए आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में किसी ने खौफनाक कहानियां शुरू कर दी, फिर एक के बाद एक ड्रावनी कहानियां चलती गई। हम सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, वक्त जैसे धुंध में गुम होता जा रहा था। फिर हम एक बड़ी सी पहाड़ी के पास पहुंचे जहां से हम गुजर रहे थे। मैंने देखा तो अजीब सा एहसास हुआ जैसे ये मंजर पहले भी देख चुका हूं। मैंने दिल में कहा शायद वहम हो, मगर चंद मिनट बाद हम दोबारा उसी पहाड़ के पास से गुजरे। अब मैं चौंक गया। मैंने फौरन कहा अब्बू ये वही जगह नहीं है जहां से हम पहले गुजरे थे? इन्होंने भी थोड़ा गौर किया, अंकल ने भी सर हिलाया। अब्बू ने घड़ी देखी, रात का 1 बज चुका था, मगर हम अभी तक उस कैनियन से बाहर नहीं निकले थे, जबकि आमतौर पर यह सफर आधे घंटे का होता था। हम तीनों खामोश हो गए। अब कोई कहानी नहीं, बस सन्नाटा। हम सिर्फ सड़क देख रहे थे जैसे वक्त थम गया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त का एहसास वापस आने लगा। पहाड़ पीछे रह गए और आखिरकार हम उस कैनियन से बाहर निकल आए। मैंने मोबाइल उठाकर माँ को कॉल की तो वो परेशान थी। कहने लगी तुम लोग कहाँ रह गए थे? तुमने तो आधे घंटे का कहा था, 1.5 घंटा हो गया। हमने सब कुछ चेक किया, कार बिल्कुल ठीक थी, रास्ता वही, मगर वो 45 मिनट कहाँ गए आज तक कोई नहीं जानता। हम सब ने उस रात के बाद कभी उस कैनियन के बारे में ज्यादा बात नहीं की। बस एक बात यकीन से कह सकता हूँ, कुछ लम्हे वहां ऐसे थे जैसे वक्त रुक गया हो, या शायद हम ही किसी और वक्त में चले गए हों। बढ़ते एक और वाकये की तरफ। ये जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, जो आज तक मेरे दिल से नहीं निकली। मैं ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन पिछले 4 सालों से रोजाना गाड़ी चला रहा हूँ, कभी दिन में कभी रात में, क्योंकि काम ही ऐसा है। ये वाकया मिसिसिपी के एक दूर दराज इलाके में हुआ था, क्लार्क्सडील से ग्रीनवुड के दरमियान, जहाँ मीलों मील सिर्फ 2 लाइनों वाली सड़क है, न बस्ती न लाइट, बस अंधेरा और खुले खेत। उस दिन मौसम बहुत खराब था। जैसे ही मैं क्लार्क्सडील से निकलने लगा तो हवा तेज हो गई, आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। मैंने अपनी बीवी को फोन किया और कहा सुनो, मौसम बहुत खराब है, तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान का भी खतरा है। मैं जैसे ही किसी सेफ जगह पर पहुंचूंगा तो मैं कॉल कर दूंगा। मैं तकरीबन 14 घंटे की ड्यूटी कर चुका था, थका हुआ था, मगर चौकस रहने के लिए कॉफी पी ली थी। रात थी, सामने अंधेरा, पीछे अंधेरा और इर्द गिर्द सिर्फ खुले खेत। अगर कभी आपने एक ऐसी जगह गाड़ी चलाई हो तो आप जानते होंगे किस कदर डरावना लगता है, खास तौर पर जब आसमान भी गुस्से में हो। मैंने तकरीबन 30 मील का सफर किया होगा कि अचानक छोटे छोटे ओले ट्रक पर पड़ने लगे। और मिसिसिपी में जुलाई के महीने में अगर ओले पड़े तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है, तूफान आने वाला है। मैं फौरन सड़क के किनारे रुक गया। इर्द गिर्द एक भी लाइट नहीं थी,
نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی انسان، بس خاموشی اور ہلکی ہلکی گرج۔ میں نے کھڑکی نیچے کی اور اپنے ساتھ رکھا ہوا ہیوی ڈیوٹی فلیش لائٹ نکالا۔ میں دائیں جانب کھیتوں کی طرف روشنی ڈالنے لگا تاکہ دیکھ سکوں کہیں بگولا یا طوفان تو نہیں بن رہا۔ کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے لائٹ موڑ کر بائیں طرف کی، ڈرائیونگ سائیڈ والی کھڑکی کی طرف، اور جیسے ہی میں نے دیکھا ایک آدمی کا چہرہ شیشے سے چپکا ہوا تھا، سفید، بالکل چاک جیسا سفید، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور ایک خوفناک مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جو کان سے کان تک پھیلی ہوئی تھی، دانت ٹیڑھے میڑھے جیسے کسی خوفناک کہانی کا کردار ہو۔ میں نے چیخ ماری اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی سایہ، کچھ بھی نہیں۔ میں نے فوراً ٹرک سٹارٹ کیا اور پوری رفتار سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ دے گا۔ جب میں ایک محفوظ جگہ پہنچا تو بیوی کو فون کیا، مگر میں نے اسے وہ سب نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ موسم خراب ہے، میں پہنچتے ہی تمہیں کال کروں گا۔ میرے ٹرک میں ہمیشہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، آگے اور پیچھے دونوں طرف۔ میں نے تھوڑی دیر بعد ہمت کی، ایس ڈی کارڈ نکالا اور ویڈیو دیکھی، لیکن آپ یقین نہیں کرو گے، اس آدمی کا چہرہ کسی بھی کیمرے میں نہیں تھا، نہ سامنے نہ پیچھے۔ میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا تھا۔ شاید میں بہت تھکا ہوا تھا یا شاید وہ وہم تھا، مگر میں جانتا ہوں اس لمحے جب اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی تھی وہ خواب نہیں تھا۔ تب سے میں نے ایک بات پکی کر لی کہ میں ڈیلٹا کے اندھیرے راستوں پر رات کے وقت کبھی اکیلا نہیں چاہتا، کبھی نہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں نے اپنی ڈرائیونگ کے سالوں میں بہت کچھ عجیب و غریب دیکھا ہے، آج سے نشئی لوگ، سب کچھ، مگر جو کچھ میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ آج بھی میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر چھوڑ گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب نارتھ ڈکوٹا US 52 پر ND30 کے پاس سائیکٹس کے قریب ایک چھوٹا سا ریسٹ ایریا ہوتا تھا۔ میں ایک رات وہاں رکا، واش روم سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے لگا تو دیکھا ایک آدمی اپنی کار کا دروازہ کھول رہا ہے۔ زاویہ ایسا تھا کہ میں صاف دیکھ سکا، وہ بالکل نیکڈ تھا۔ پھر وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور آرام آرام سے اپنی کار کے گرد چکر لگانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نشئی تھا یا کسی اور مقصد سے کر رہا تھا، بس میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل آیا۔ پیچھے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کی، لیکن اصل ڈراؤنی بات آگے ہوئی۔ میں کنساس میں I-17 پر مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ راستہ میلوں میل سنسان ہے، بیچ میں بس چھوٹے چھوٹے قصبے۔ رات بڑھتی گئی، میں نے محسوس کیا کہ ایک پرانی سی خستہ حال کار مجھے بار بار اوورٹیک کر رہی ہے۔ ہر بار جب وہ گاڑی میرے آگے سے گزرتی، اندر بیٹھے لوگ اپنی ناکیں شیشے سے لگا کر عجیب سی دلچسپی سے مجھے گورتے، اور حیرت یہ کہ میں کبھی نہیں دیکھ پاتا کہ وہ کہاں رکتے ہیں۔ کوئی ریسٹ ایریا نہیں، کوئی ایگزٹ نہیں، کوئی بستی نہیں، لیکن پھر بھی وہ کار، وہی لوگ بار بار میرے سامنے آ جاتے۔ ان سب کے چہرے کسی چارلسن مینسن یا کسی اور خوفناک کردار جیسے لگ رہے تھے۔ جب تک میں لیمن کے سٹاپ تک نہیں پہنچا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ بس اسی پر ختم نہیں ہوا۔ رات کی ان سنسان ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرنے والا ہر شخص کبھی نہ کبھی ایسی چیزیں دیکھتا جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تھکن ہو یا وہم، مگر میں نے کئی بار ایسے بڑے بڑے انسان نما سائے سڑک پار کرتے دیکھے جو اپنے سائز کے حساب سے بہت تیز تھے۔ وہ ہمیشہ میری ہیڈ لائٹ کے آگے کنارے پر نظر آتے، اتنے دور کے صاف پہچان نہ ہو پائے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ بگ فٹ تھا، مگر میں نے جو دیکھا وہ 1-2 قدموں میں پوری سڑک کو کراس کر رہا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان دیکھ کر بھی یقین نہیں کر پاتا، اور میں نے ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں کنساس میں رہتا ہوں اور کئی بار اس مغربی لمبے سنسان راستے پر کیلوراڈو کی طرف گیا ہوں۔ میلوں میل کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جو چھوٹے قصبے آتے ہیں وہ بھی زیادہ تر ٹوٹے پھوٹے اور ویران ہوتے ہیں۔
दिन में तो ये सब ठीक लगता है, मगर मैंने कभी रात को ये रास्ता नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि रात के सन्नाटे में ये जगह ड्रोनी हो सकती है। और पता नहीं क्यों, मगर इस स्टेट में रात के वक्त कुछ लोग सच में तुम्हारे साथ खेलने लगते हैं। जैसे अगर आप हाईवे पर अकेले हो, सिर्फ आपकी गाड़ी और उनकी गाड़ी, और फिर वो अपनी गाड़ी के साथ ऐसा खेल शुरू करते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मुझे 3 दफा ऐसा हुआ। एक गाड़ी आती है, मुझे ओवरटेक करती है, मेरे आगे आकर आहिस्ता हो जाती है ताकि मैं मजबूर होकर उसे क्रॉस करूं। फिर वो स्पीड बढ़ाकर मेरे बराबर आ जाती है, कुछ देर साथ साथ रहती है, फिर आगे निकलकर आहिस्ता हो जाती है, और ये खेल चलता रहता है। जब हम किसी और गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो उनके साथ शुरू कर देते हैं, और मैं मौका देखकर आगे निकल जाता हूँ। एक दफा तो हद ही हो गई। एक गाड़ी ने आधा घंटा यही हरकत करके मुझे 2 लाइन तक फॉलो किया। बाकी सब लाइनें खाली थी, मगर वो जानबूझकर मेरी ही लाइन में आ गया। मेरे पास के टैग था। वर्कर ने मुझे हाथ देकर आगे निकलने का कहा, मगर मैंने वही गाड़ी रोककर उसे बताया कि पीछे वाली गाड़ी मीलों से मुझे फॉलो कर रही है, ओवरटेक करके आहिस्ता हो रही है और अब मेरी लाइन में भी आ गई है। उसने कहा कि उनके पास के टैग नहीं है, वो जानबूझ के तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। उसने कहा कि मैं उनके पैसे लेने में वक्त लगाऊंगी ताकि तुम्हें आगे निकलने का मौका मिले। फिर वो गाड़ी पीछे हट गई और दूसरी लाइन में जाकर खड़ी हुई। वर्कर ने मुझे कहा, तुम जरा रुको। इसने रेड सिग्नल ऑन कर दिया ताकि पीछे कोई और ना आए। वो गाड़ी 2 मिनट तक बस खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाईवे पर निकल गई। वर्कर ने दूसरी बूथ पर कॉल करके कहा कि ये गाड़ी बहुत मशकूक है। मैंने मजीद 5 मिनट वहीं खड़े होकर गुजारे, फिर बिल्कुल पहला एग्जिट लेकर शहर के अंदर से होते हुए घर जाने वाली सड़क पर निकल गया। मुझे डर था कि शायद वो गाड़ी हाईवे पे आगे कहीं खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो। ये सब रात के 2 बजे के करीब हुआ था। यकीन करो, ऐसे लोग जो ये हरकतें करते हैं वो किसी भूत या जिन से कम नहीं लगते। अंधेरी सड़क, खाली हाईवे, आप अकेले और कोई गाड़ी बार बार वही हरकत कर रही हो, ये दिल दहला देने वाला तजुर्बा होता है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं ट्रक ड्राइवर तो नहीं था, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री में फील्ड टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था, इसलिए मेरा ज़्यादा वक्त कनाडा के दूर दराज इलाकों में रात के अजीबो-गरीब औकात में ड्राइविंग में गुजरता था। एक रात का वाक़या आज तक मेरे दिलो दिमाग में नक्श है, और हर बार याद आता है तो बदन में कपकपी दौड़ जाती है। मैं शुमाली मशरकी ब्रिटिश कोलंबिया या शुमाली मगरबी अल्बर्टा के किसी इलाके में था, जगह सही से याद नहीं। रात काफ़ी गुजर चुकी थी और मैं गाड़ी चला रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान और इर्द गिर्द घना अंधेरा। अचानक मुझे सड़क पर एक बहुत बड़ी सियासी चीज नजर आई। मुझे ऐसा लगा शायद कोई मौस है। फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी चंद फीट के फासले पर रोक दी। हेडलाइट सीधी उस पर पड़ रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि इतने करीब होने के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। इसका हुलिया जैसे 4 टांगों वाला कोई जानवर हो, मगर कद 6 फीट के करीब और पूरा काला, बगैर किसी वाज़ह शक्ल या डिजाइन के। आंखों की रोशनी नहीं, बाल नहीं, कुछ नहीं, बस एक स्याह धब्बा जैसे अंधेरे का एक टुकड़ा सड़क पर उतर आया हो। फिर मेरी नजर सड़क के दोनों किनारों पर गई। खाई में ऐसी ही 5-6 चीजें और खड़ी थी, ये शायद उससे भी ज्यादा। सब एक जैसी स्याह, बगैर हरकत के। वो सब किसी जानदार की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि बस खालिस अंधेरे के बड़े बड़े धब्बे जैसे रोशनी को खा रहे हो। मेरे हवास ठिकाने आने लगे तो खौफ ने गिरफ्त शुरू कर दी। मैंने फौरन गाड़ी को उस सियाह शय के गिर्द से गुजारा और तेजी से निकल गया। आज भी मैं ये नहीं कहता ये कोई मावराई चीज थी। उस वक्त मैं 8 घंटे से ज्यादा मुसलसल रात के अंधेरे में गाड़ी चला रहा था। आंखें थक चुकी थी, दिमाग भी शायद हल्का सा लूसनेट कर रहा था, मगर जितना भी हो
وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے زیادہ عجیب اور ڈراؤنے تجربات میں سے ایک تھا۔ چلتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں ٹرک ڈرائیور نہیں ہوں، لیکن میرا کام ایسا ہے کہ مجھے روزانہ 5 گھنٹے ایک طرف کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ میری ڈیوٹی رات 11:30 بجے ختم ہوتی ہے۔ اگر ہمت ہو تو میں پورا راستہ ایک ہی بار میں گھر پہنچ جاتا ہوں، ورنہ کبھی کبھی گاڑی روک کر تھوڑا سستا لیتا ہوں۔ اس طرح ایک رات کا واقعہ، بگمپٹن سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے میرا دماغ تھکنے لگا۔ راستے پر ایک گیس اسٹیشن ہے جہاں میں اکثر رک کر گاڑی میں سستا لیتا ہوں۔ اس رات بھی میں نے ایسے ہی کیا۔ گاڑی میں پیٹرول بھرا، سنیکس اور سگریٹ لیے اور اپنی ونڈو پر وہی پرچی لگا دی، میں ٹھیک ہوں، بس 4 گھنٹے کا سفر باقی ہے، براہ کرم دستک نہ دیں۔ یہ پرچی میں ہمیشہ اس لیے لگاتا ہوں کہ پہلے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ مجھے سویا ہوا دیکھ کر سمجھ بیٹھے کہ میں مر گیا ہوں یا کسی نشے میں ہوں اور پولیس بلا لی، حالانکہ میں بس تھکا ہوا تھا۔ میں نے سیٹ پیچھے کی، الارم 20 منٹ کا لگایا اور سو گیا۔ یہ رات کا تقریباً 1 بجا تھا۔ اگلی بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے 6:30 بجے اور میں کسی پچھلی سڑک پر بہت آہستہ گاڑی چلا رہا ہوں۔ ارد گرد کبھی گھر ہے، کبھی کھیت، مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے آیا۔ فون کے سگنل بھی کمزور تھے۔ میں نے جلدی سے امی کے ایڈریس پر نیویگیشن لگائی اور دعا کی کہ لوکیشن آ جائے۔ خوش قسمتی سے آ گئی اور وہ مجھے ہارپر کے ہائی وے پہ انٹری تک لے گئی۔ 20 منٹ بعد میں واپس مین ہائی وے پر تھا۔ یہ سب ہو کیا گیا تھا؟ میں نے الارم لگایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں 1:30 بجے اٹھا ہوں گا، مگر میں ہوش میں صبح 6:30 بجے آیا۔ یہ 5 گھنٹے میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ گاڑی بالکل سلامت تھی، نہ کوئی نشان، نہ کوئی حادثہ، رفتار بھی ٹھیک رہی ہوگی ورنہ پولیس روک لیتی۔ تو کیا میں 5 گھنٹے سوتے سوتے گاڑی چلاتا رہا؟ یہ بات میرے لیے خوفناک تھی۔ میں پہلے بھی ایک بار گاڑی چلاتے سو گیا تھا اور حادثے کا شکار ہوا تھا۔ کار ٹوٹ گئی تھی، چہرے پر نشان اور کمر کا درد الگ، مگر یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ آج تک جب یہ یاد آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے کہ ان 5 گھنٹوں میں آخر ہوا کیا تھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ میرے دادا کے زمانے کا ہے۔ وہ جوانی میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتے تھے، جنگلوں کے بیچوں بیچ واشنگٹن اور اوریگن کے درمیان۔ ان کے مطابق وہ زندگی عام سی تھی، بس ایک رات ایسی آئی جو کبھی بھولی نہیں گئی۔ دادا بتاتے تھے کہ ایک رات وہ اور ان کے 3 ساتھی جنگل سے واپس آ رہے تھے۔ دیر ہو چکی تھی، شاید صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ سب ایک پرانی کار میں تھے، ڈرائیور آگے، ایک ساتھی فرسٹ سیٹ پر اور دادا پیچھے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ۔ راستہ سناٹا، درختوں سے بھرا اور بس ہیڈ لائٹ کی مدھم روشنی۔ دادا کہتے ہیں کہ وہ دونوں پیچھے سو گئے تھے، بس آگے والے 2 بندے جاگ رہے تھے تاکہ ڈرائیور جاگتا رہے۔ پھر اچانک گاڑی ایک دم چیختی ہوئی رک گئی، ٹائروں کی آواز جنگل میں گونج گئی۔ دادا اور ان کے ساتھی ہڑبڑا کر جاگے۔ سامنے ڈرائیور اور فرنٹ والا بندہ پتھر کے مجسمے بنے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، چہرے زرد، آنکھیں کھلی ہوئی اور دونوں کے منہ سے بس گالیاں نکل رہی تھی۔ دادا نے بھی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سڑک کے بیچ کسی بہت لمبی سیاہ چیز پر پڑ رہی تھی۔ وہ چیز پتہ نہیں کیا تھی، انسان سے 2 گنا اونچی، چوڑی، بالکل سیاہ، جیسے روشنی اس پر پڑ کر غائب ہو رہی ہو۔ کچھ سیکنڈ سب خاموش رہے، پھر ڈرائیور نے بغیر ایک لفظ کہے گاڑی کو پیچھے گھمایا، سب سے تیز ترین پوائنٹ ٹرن مارا جو دادا نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور الٹا راستہ پکڑ لیا۔ بعد میں سب نے یہی سوچا کہ شاید وہ کوئی رچ ہوگا جو گاڑی کی روشنی دیکھ کر ڈر گیا تھا، مگر دادا ہمیشہ کہتے تھے میں نے رچ دیکھے ہیں، وہ چیز رچ نہیں تھی۔ یہ کہانی وہ ہر خاندانی بیٹھک میں سناتے تھے، اتنی بار سنائی کہ وہ منظر آج بھی میرے ذہن میں جیسے چل گیا ہو۔ وہ اندھیری سڑک، وہ ساکت سایہ اور دادا کی آواز میں وہ ہلکی سی کپکپاہٹ
जैसे वो अब भी उस रात को भूल नहीं पाए। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं उस वक्त एक ऑफ रोड रेसिंग टीम के साथ था। बाजा कैलिफोर्निया मैक्सिको में टीम का क्रू मैन था। ट्रक और रिग्स टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिलता था। उस रात मैं अपने एक दोस्त के साथ एक ऑफ रोड में नीचे की तरफ जा रहा था। ये वो सड़क है जो गोंजागा तक जाती है। तकरीबन 4 घंटे का सन्नाटा, रेत और पत्थरों का रास्ता। बीच में कोई बंदा नहीं, पुलिस नहीं, कुछ नहीं, बस हम और हमारा ट्रक। रात के अंधेरे में गाड़ी चल रही थी कि अचानक पीछे रोशनी नजर आई। एक गाड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। पहले तो लगा आम बात है, यहाँ अक्सर मुकामी लोग या बाहर के गोरे स्प्रिंग ब्रेक वाली टाउन से पी कर आते हैं और उसी सड़क पर अपनी गाड़ियां तेज चलाकर टेस्ट करते हैं। कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन इस गाड़ी की बात अलग थी। उसकी छत पर बार माउंटेन हेडलाइट्स जैसी रोशनी थी, इतनी तेज कि हमें अंधा कर रही थी। मैंने हाथ हिलाकर इशारा भी किया कि भाई जरा लाइट नीचे करो, लेकिन वो ना रफ्तार कम कर रहा था और ना लाइट्स। सड़क इतनी तारीक और खतरनाक थी कि हर लम्हा लगता था बस अभी कुछ हो जाएगा। फिर साहिल के करीब एक मोड़ आया। मैंने मौका देखकर ट्रक को साइड पर निकाला ताकि वो हमें ना मार दे। हम रुक गए और वो गाड़ी सीधी स्पीड में हमसे आगे निकल गई। हम दोनों ने बस ये सोचा कि बंदा अब सीधा समुंदर में जा गिरेगा, लेकिन रोशनी समुंदर में गिरने की बजाय सीधी साहिल पार कर गई और फिर अचानक रात के आसमान की तरफ ऊपर उठ गई और गायब हो गई। एक लम्हे के लिए हम दोनों बिल्कुल खामोश बैठे रहे, दिल की धड़कन तेज, जुबान पर कोई लफ्ज नहीं। फिर मेरा दोस्त आहिस्ता से बोला, तुमने देखा? मैंने कहा, वो फ्लाइंग ट्रक। फिर हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की, ना रास्ते में ना पहुंचने के बाद, क्योंकि बात करना भी मायनी था। बस वो मंजर और वो रोशनी आज तक मेरे दिमाग में कैद है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूं जो आज भी याद आता है तो रीढ़ की हड्डी में सनसनी तोड़ जाती है। वो रात बिल्कुल सन्नाटे वाली, लंबी और खौफनाक थी। मैं वाशिंगटन के शहर स्पोकिन से नेब्रास्का के ओमाहा जा रहा था। रास्ता लंबा था तो मैंने हाईवे 212 का रुख किया, जनूबी मोंटाना का वीरान सा रास्ता। रात के 2 बज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा, ना कोई गाड़ी ना कोई आवाज, बस मेरी कार, हल्की सी हेडलाइट की रोशनी और सन्नाटा। काफी देर से मैंने किसी इंसान को नहीं देखा था। 1 घंटे से ज्यादा गुजर चुका था जब से मैं I-90 से उतरा था और उस दौरान कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी। फिर अचानक एक छोटा सा कस्बा आया, शायद उसका नाम लिमडेयर मोंटाना था, लेकिन आज तक यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि जब भी मैंने नक्शे पर वो जगह ढूंढने की कोशिश की नहीं मिली। खैर कस्बा बिल्कुल सुनसान था, एक ही सिग्नल लाइट थी और किस्मत देखो वो भी लाल थी। मैं गाड़ी रोककर खड़ा हो गया। सामने एक बंद दुकान, इधर उधर पुराने बोर्ड, कोई इंसान नहीं, बस मैं, मेरा दिल और वो लाल रोशनी जो सड़क पर अजीब सा असर डाल रही थी। और फिर अचानक एक सायरन बजने लगा, ऐसा खौफनाक दार अलार्म के गाड़ी के शीशे तक हिलने लगे। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ड्रानी फिल्म का सायरन हो। मैं साकित रह गया, ऐसा लगा जैसे सारा कस्बा किसी ड्राने ख्वाब से जाग उठाओ। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी जोर से थी कि यकीन नहीं आता कोई इंसान सो भी सकता हो। मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। मैंने गियर डाला और रेड लाइट तोड़कर पूरी रफ्तार से वहां से निकला। मेरी कार का छोटा सा इंजन चीख रहा था, लेकिन मैं रुके बगैर भागता गया, यहाँ तक कि वो आवाज पीछे कहीं अंधेरे में गुम हो गई। शायद उस सायरन की कोई आम सी वजह हो, कोई वार्निंग, कोई पुराना अलार्म। मगर यकीन करो, जब आप मीलों तक किसी इंसान को नहीं देखते और एक अनजान कस्बे में ऐसी आवाज गूंजे तो रूह कांप जाती है। आज भी जब रात को लंबे सफर पर निकलता हूँ और कहीं दूर कोई सायरन बजता है तो वो
लैम डेयर की रात याद आ जाती है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये बात आज भी मेरे दिल से नहीं निकली। मैं ट्रक ड्राइवर तो नहीं, लेकिन कॉलेज के दिनों में एक वाकया ऐसा हुआ जो आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं उस वक्त अपने फ्रेंड के साथ मियामी से नेपलर्स जा रहा था। रात का वक्त था और हम एवरग्लेड के बीचों बीच एक सन्नाटे वाले 2 रिविया रोड पर थे। हमारे आगे एक 18 व्हीलर ट्रक जा रहा था और हम काफी देर से उसी के पीछे लाइन में चल रहे थे। मेरा दोस्त सो गया और मैं बोर होकर रेडियो चैनल बदल रहा था। तकरीबन सारे स्टेशन शोर दे रहे थे, सिर्फ एक स्टेशन साफ आ रहा था। मैंने वो लगा दिया। थोड़ी देर बाद उस पर डीजे की आवाज आई। बड़े पुरसुकून आवाज थी। उसने कहा, आज रात एवरग्लेड्स का आसमान गैर मामूली तौर पर चमक रहा है। अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो गाड़ी रोककर एक बार आसमान जरूर देखें। पता नहीं क्यों उसकी बात दिल में उतर गई। आमतौर पर मैं कभी गाड़ी ना रोकता, मगर उस रात जैसे किसी ने अंदर से कहा, रुक जाओ। मैंने अपने फ्रेंड को जगाया। वो नाराज हो गया, बोला, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। रात के 2 बजे आसमान देखने कौन निकलता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जिद की। हम सड़क के किनारे गाड़ी रोक कर नीचे उतरे। हवा ठंडी थी, बिल्कुल खामोशी और आसमान। यकीन मानो मैंने अपनी जिंदगी में इतने खूबसूरत तारे कभी नहीं देखे थे। जैसे आसमान जमीन के बिल्कुल करीब आ गया। हम तकरीबन 5-10 मिनट वहां खड़े रहे, फिर वापस गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही दोबारा सड़क पर चले, थोड़ी दूर गए तो सामने लाइट्स और धुआं नजर आया। मैंने गाड़ी आहिस्ता की। सामने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वही 18 व्हीलर ट्रक जिसके पीछे हम चल रहे थे, वो अचानक जैक नाइफ हो गया था और उसके पीछे आने वाली कई गाड़ियां बुरी तरह टकरा गई थी। मैं गाड़ी रोककर नीचे उतरा। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ गाड़ियां पूरी तरह मुड़ चुकी थी। बाद में पता चला कि कई लोग मौका पर ही मर गए थे। मैं और मेरा दोस्त कुछ देर वहीं खड़े रहे। बोलने की हिम्मत नहीं थी, सिर्फ एक ही बात जहन में गूंज रही थी, अगर हम उस वक्त ना रुकते तो शायद हम भी उनमें शामिल होते। उस रात के बाद मैंने कभी उस रेडियो स्टेशन को दोबारा नहीं सुना। कई बार सर्च किया, मगर वो फ्रिक्वेंसी जैसे गायब हो चुकी थी। पता नहीं वो डीजे कौन था या वाकई कोई स्टेशन भी था या नहीं। लेकिन एक बात है, कभी कभी कोई ना कोई ऊपर से आपको बचा लेता, बस आपको उसकी आवाज सुननी होती है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये वाकया आज तक मेरे दिल से नहीं निकला। कुछ साल पहले की बात है। मैं एक रिग चला रहा था। रात का वक्त था, तकरीबन आधी रात गुजर चुकी थी। मैं यूटा के एक कम इस्तेमाल होने वाली 2 रिविया हाईवे पर था। सड़क बिल्कुल सुनसान, चारों तरफ अंधेरा और पहाड़ों सा माहौल। पता नहीं क्यों उस रात मेरी आंखें आम दिनों के मुकाबले ज्यादा चौकस थी। मैं गाड़ी चला रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे सड़क के किनारे कोई चीज मौजूद है। वो सीधा रोड पर नहीं थी, बिल्कुल रोड के बिल्कुल साथ खड़ी थी। मैंने फौरन ट्रक साइड पर रोका। हाथ में हैवी ड्यूटी टॉर्च थी, वही निकाली और रोशनी की तरफ किया। और फिर जो मैंने देखा वो आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। वो एक इंसानी शक्ल जैसा कोई वजूद था, मगर इंसान नहीं था। उसके हाथ में कोई मुर्दा जिस्म था जिसे वो खा रहा था। मेरा ट्रक जैसे उसके खाने के दौरान उसकी तवज्जो बन गया और वो चढ़ गया। अचानक वो खड़ा हो गया। अब मुझे उसका पूरा कद साफ नजर आने लगा। दुबला पतला, 6 फुट से ज्यादा लंबा, बाजू और टांगे गैर मामूली तौर पर लंबी और पतली बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर खून जैसे पूरा चेहरा सुर्ख हो, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मेरे पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उस टॉर्च के, जो उल्टा मुझे ही सब कुछ दिखा रही थी। मैंने 1 सेकंड सोचा, फिर फौरन ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। गाड़ी तेज करके मैंने पीछे देखा तो वो चीज सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, और मुझे जाता हुआ देख रही थी। कुछ मील बाद एक रेस्ट स्टॉप आया। मैंने गाड़ी वहीं रोकी। हाथ कांप रहे थे।
वहाँ 2 और ट्रक ड्राइवर खड़े थे। दोनों के चेहरे भी उसी तरह सफ़ेद पड़े हुए थे जैसे मेरे। उनकी आंखों में भी खौफ था। मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि उन्होंने भी इस चीज़ को देखा था। आज तक मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो समझ नहीं आता वो क्या था। मैं खुद वहमों में पड़ने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ का वजूद इंसान नहीं लगता था। कोई दीवाना या पागल शख्स होता तो शायद ऐसा रद्द-ए-अमल ना देता, ना ही उसकी शक्ल में नजर आता। ये पता आज भी मेरे दिल में है कि हम उस रात यूटा की उस सुनसान हाईवे पर आखिर किस चीज से टकराए थे। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये बात जब भी याद आती है तो अजीब सी ठंड दिल में उतर जाती है। मैं अक्सर अपनी माँ से उनके खानदान के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि मैं उनमें से ज्यादातर को कभी देखा भी नहीं। या तो वो सब दुनिया से जा चुके हैं या फिर उनसे ताल्लुक ज्यादा अच्छा नहीं रहा। एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि एक रात उन्हें उनकी माँ यानी मेरी नानी का फोन आया। नानी उनसे बात कर रही थी, कह रही थी कि वो इन्हें कितना याद करती, उन्हें कितना अफसोस है कि वो मेरे भाई की पैदाइश नहीं दे सकेंगी। बातें बिल्कुल वैसी थी जैसे एक माँ अपनी बेटी से करती है, मोहब्बत, याद और पछतावे से भरी हुई। लेकिन माँ ने कहा कि उस कॉल में एक अजीब सा खौफ और बोझल सा एहसास था, जैसे कोई बहुत गहरी बात हो लेकिन जुबान पर ना आए। बातचीत एकदम खत्म हो गई। नानी ने कहा कि अब मुझे अलविदा कहना होगा और फोन बंद हो गया। माँ की आंखें खुली तो उन्हें याद आया कि उनकी माँ तो कब की मर चुकी है। उनका मानना है कि शायद वो हकीकत में उनसे राब्ता कर रही थी। ये सुनकर मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं अपनी माँ के वालिदैन से मिल पाता, लेकिन दोनों ही मेरे पैदा होने से पहले कैंसर की वजह से दुनिया से जा चुके थे। माँ ने एक और बात भी बताई, एक घड़ी के बारे में। मैं उस घड़ी की पूरी तफसील नहीं जानता, लेकिन माँ बताती है कि जब भी खानदान में कोई फौत होता, वो घड़ी उल्टी सिमत में घूमना शुरू हो जाती। पहले तो सब उसको मजाक समझते थे, हंसते रहते कि ये क्या हरकत है। मेरी नानी जब ब्रेस्ट कैंसर के साथ तवील जंग लड़ी और आखिरकार दुनिया से चली गई तो घड़ी वाकई उल्टी घूमने लगी। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। माँ कहती है कि नाना जी उसको उस वक्त इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो घड़ी उठाकर कमरे में दे मारी और तोड़ दी। ये सब बहुत अजीब है, मेरे पास सब तफसील नहीं, लेकिन जब माँ ये सब बताती हैं तो दिल में एक अजीब सा एहसास और खौफ, हैरत बैठ जाती। कभी कभी सोचता हूँ ये सब क्या था, बस इत्तेफाक या कुछ और। बढ़ते हैं एक और वाक़ये की तरफ। ये वाक़या आज भी मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपनी पुरानी कंपनी में आखिरी हफ्ता गुजार रहा था। मैं बहुत नर्वस था क्योंकि कंपनी का रूल बहुत सख्त था, कोई भी मुसाफिर साथ नहीं ले जा सकते इंश्योरेंस की पॉलिसी की वजह से। लेकिन एक मेरी दोस्त थी, लड़की, जो कि खुद ट्रक ड्राइवर बनना चाहती थी। मैंने सोचा चलो इसे हकीकत दिखाता हूँ ताकि इसका शौक ठंडा पड़ जाए। मैंने रूल तोड़ने का फैसला किया और इसे साथ लेकर 5 दिन का सफर शुरू कर दिया। हम घर से निकले और मैं हमेशा की तरह अपना रूट ले रहा था। रास्ता वही पुराना, तकरीबन याद शुदा। जैसे ही हम नोए की सरहद में दाखिल हुए, मैंने सोचा कि अपने मामूल वाले रेस्ट एरिया पर रात गुजारूं। ट्रक 62 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था और मेरी 11 घंटे की ड्राइविंग मुकम्मल होने ही वाली थी। मैंने अपना कॉलम चेक किया और वो दिखा रहा था कि मेरे पास अभी 1.5 घंटा ड्राइविंग बाकी है। मैं हैरान रह गया, ये मुमकिन ही नहीं था। मैं मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहा था, ना कोई डी लाइन सेविंग का मामला, फिर ये एक्स्ट्रा वक्त कहाँ से आ गया। मैंने सोचा कि चलो आगे बढ़ता हूँ, शायद सिस्टम का कोई ग्लिच हो। बातों में वक्त गुजर रहा था। 1 घंटा और ड्राइविंग की, लेकिन जब दोबारा अलकुम देखा तो वो अब भी 1 घंटा बाकी दिखा रहा था। मैं थकन से चूर हो चुका था। मेरी दोस्त भी अब घबरा गई। वो कैलकुलेटर निकाल कर बैठ गई। हम कब निकले थे, कितने ब्रेक लिए थे, वक्त कहाँ गया। मैंने तंग आकर कहा
छोड़ो यार, बस अब रुक जाते हैं। अगले ट्रक स्टॉप पर गाड़ी खड़ी की, इंजन बंद किया और कुर्सी पर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। लेकिन जब लॉक चेक की तो ये देखकर झटका लगा, मैं पूरे 13 घंटे ड्राइव कर चुका था, मगर सिस्टम अभी 11 घंटे दिखा रहा था। 2 घंटे जैसे कहीं गायब हो गए थे। उसी हफ्ते में और भी चीजें हुई। 2 गाड़ियां मेरे सामने स्पिन आउट हुई। एक पहाड़ी पास पर सेमी ट्रक अचानक स्टॉल हो गया और बाल बाल बचा। मैंने उस दिन समझा कुछ सफर सिर्फ रोड पर नहीं होते, कुछ वक्त के साथ भी हो जाते हैं। उस हफ्ते के बाद मेरी दोस्त ने फैसला किया कि वो ट्रेनिंग नहीं करेगी। उसने मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर ली और मैं आज तक सोचता हूँ उस रात के वो 2 घंटे आखिर कहाँ चले गए थे। दोस्तों ऐसी मेरे पास और भी स्टोरीज हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मुझे क्या इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए। अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर अपलोड करूँ। तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं और अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू। आई होप आज की स्टोरीज आपको आज पसंद आई होंगी। कुछ यूनिक करने की कोशिश की है तो राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक ये स्टोरीज नहीं सुनी तो लाजमी सुनिएगा। आपको अच्छी लगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लव।